Hello students, how are you? Today we all of learns about the next topic of the chapter, microbes in human welfare. Microbes in human welfares. In the previous session, we all of detailed study about the microbes in household products and microbes used in industrial products. Today we all of know microbes used in sewage treatment. Microbes in used in sewage treatment. Sewage treatments. Used in sewage treatments. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट आर द सीवेज. सीवेज क्या होता है? Sewage. What are the sewage? The unwanted things which are dissolved in the waters, is known as sewage. It composed of numbers of pathogenic microbes as well as various organic matters which are harmful for all living beings. Means सीवेज क्या है? सीवेज ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें वाटर के साथ साथ नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती है और इस इम्प्योरिटीज में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिविंग बीइंग्स के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं. तो दिस इज नोन एज सीवेज. सीवेज ट्रीटमेंट्स, माइक्रोब्स का हम कैसे यूज करते हैं सीवेज में. माइक्रोब में ऐसी क्या पावर है कि वो हमारे जो वाटर बॉडीज है, जो इम्प्योरिटीज है, उसको वो क्लियर कर देता है. ओके, तो माइक्रोब्स आर हेट्रोट्रॉपिक्स. दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज. बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर्स, the water is clarified and useful for using various purposes. So sewage treatments is completed in two steps. Number one, primary treatments. And second is secondary treatments. Primary treatments and secondary treatments. Primary treatment and secondary treatments. So first of all we know what are the primary treatments. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, इन दिस ट्रीटमेंट्स वी फिल्टर द फिजिकल इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो वाटर में इम्प्योरिटीज हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं, दैट इज पॉलीथीन है,
wood है, and numbers of light metals हैं which are floating on the surface of waters can be filtered by the slit which composed of small pores. The blood is filters, the water is filters, whereas the remaining impurities removed off. Okay? Physical treatments removing of physical impurities. So it composed of two parts. Number one, physical removing of impurities of the water, and second is the sedimentation. Second is the sedimentation. Sedimentation Sedimentation process क्या है? You all have generally studied to this process in the class 6 separation methods. In the various separation methods, the one method is the sedimentation. तो sedimentation में क्या करते हैं? जो इसमें dissolved impurities होती है, suspend impurities होती है, वो क्या होती है? When it kept in the specific pots or tanks, all impurities settle down which are dissolved in them. Means जो पानी में घुली हुई impurities है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो धीरे धीरे जब हम उसको रख देते हैं किसी पॉट्स में या किसी टैंक में, तो धीरे धीरे सब नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर से जो प्योर वाटर होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती है उसको निकाल करके हम यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, लाइक एज मैन्यूर एंड अदर फॉर्म्स. तो sedimentation and filtration is the two main steps which generally done in the primary treatments. Okay, क्लियर हो गया कि सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? नंबर वन, रिमूविंग ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटीज. उस वाटर बॉडी से जो फिजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लिया जाता है. और सेकेंड है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? जो वाटर में सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेटलिंग टैंक में करके उसको हम सेडिमेंट कर देते हैं, जिससे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं और हम प्योर वाटर को सेपरेट कर लेते हैं. ओके. फ्लक्स, द वन टर्म द फ्लक्स. फ्लक्स क्या है? इट इज द masses of bacteria and fungi, the mesh-like structures. It is a mesh-like structures in which fungi and bacteria closely present to each other. Secondary treatment. Secondary treatment सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? इन दिस ट्रीटमेंट्स we used heterotrophic bacterias. And the bacteria are both aerobic and anaerobic.
व्हाट आर एरोबिक बैक्टीरियाज? एरोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? दोज बैक्टीरियाज विच सर्वाइव or multiplicate very fastly in the presence of oxygen is known as aerobic bacteria. ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मल्टीप्लिकेट करते हैं, मतलब मीन्स अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए यूजफुल है. And other anaerobic bacteria, the bacteria which cannot grow in the presence of oxygen, the oxygen is toxic for them. उनके लिए क्या है? ऑक्सीजन एक जहर की तरीके से टॉक्सिक है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरियाज. ओके, तो इन द फर्स्ट स्टेप द सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. ओके, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्यों कहा गया? बिकॉज ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट्स द माइक्रोब्स आर यूज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज, सो दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स. ओके, तो in the biological treatments, first of all, the filtered waters which we obtain from the primary treatments known as filtered waters are primary effluents. Primary effluents. It passes into aerobic tanks in which air is passes in them. एरोबिक टैंक में पास करते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट्स को, जो फिल्टर वाटर हमको मिला था प्राइमरी ट्रीटमेंट से, जिससे हम ज्यादा ज्यादा उसमें एयर पंप करते हैं बाय द एजिटेटर्स. तो ज्यादा ज्यादा एयर ट्रांसफर करने से क्या होगा? मोर एंड मोर बैक्टीरियाज आर ग्रो. नंबर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो. ड्यू टू दिस दे decompose organic matters which are present in the waters. Means जो वाटर बॉडीज में इम्प्योरिटीज या ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए जो एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो बैक्टीरिया यूज करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है. जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज होती है उसको खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है. ओके, and in the second step, after treatments of aerobic bacteria, some impurities are remain in the water bodies. Means aerobic bacteria maximum जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है वाटर बॉडीज के अंदर उसको यूज कर लेता है, डिकम्पोज कर देता है, फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज उसमें बची रहती है. देन द सेकेंडरी इफ्लुएंट्स pass in the settling tanks in the anaerobic chambers या anaerobic settling tanks where the anaerobic bacteria are present. These bacteria decompose remaining organic matters and remove the all impurities which are present in the waters.
During this process, numbers of gases are formed, and these combined form, these are known as biogas. Known as biogas. Hydrogen, carbon dioxide, methane, all of the mixtures are known as biogas. Okay? After this, the treated waters passes into the water bodies like as river, pond, etc. BOD, BOD, BOD का स्पेलिंग फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. व्हाट आर द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? क्या होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिंग of the organic matters which are present in the polluted water bodies. Means बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? वह डिमांड किसी भी पॉल्यूटेड वाटर्स में जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या इम्प्योरिटीज होती है उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या कहलाती है? बीओडी. क्लियर? बीओडी क्या है? द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. किसी भी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं या कह सकते हैं पॉल्यूशन है, उसको रिमूव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके? तो BOD the parameter of the pollution of waters. BOD the parameters of the pollution of water. Pollution indicators. If any water bodies BOD is more much, अगर किसी भी वाटर बॉडीज की BOD ज्यादा है तो क्या होगा? वो पॉल्यूटेड वाटर होगा. अगर किसी भी वाटर की BOD बहुत ही कम है तो वो प्योर वाटर होगा. तो ये इंडिकेट करता है BOD की वाटर पॉल्यूटेड है और नॉन पॉल्यूटेड है. जितना पॉल्यूशन होगा, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा उसकी BOD बढ़ती जाएगी. ओके? क्लियर? व्हाट इज द BOD? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ठीक. तो इट इज द ट्रीटमेंट्स ऑफ सीवेज. समझ में आ गया होगा कि माइक्रोब्स का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है. माइक्रोब्स का यूज हम कहां करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज में, और उसमें एक एक्टिविटी जो आज हमने जानी वो कौन सी है? माइक्रोब्स यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट्स. मीन्स जो इम्प्योरिटीज है या हार्मफुल मटेरियल्स के रिमूवल के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि माइक्रोब्स में ये पावर है कि जो इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसको वो डिकम्पोज कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है.
उसको ब्रेक कर देता है सिंपल फॉर्म में, वो टूट जाता है, जिससे जो उसकी ओरिजिनल अपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है वो खत्म हो जाती है और उसकी जो पावर है वो रिमूव हो जाती है। तो हम दोनों टाइप की माइक्रोब्स का यूज करते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, बोथ आर यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट्स। ओके।